गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने वाले और फिगर्स ऑफ स्पीच। वी हैव ऑलरेडी लर्न लॉट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन अर्लियर लेक्चर। दिस इज आवर 6th lecture in figures of speech. We have already learned figures of speech in previous 5 video lectures. And let me tell you that this is the last lecture of figures of speech. Okay? Today we shall learn more 7 types of figures of speech. और दूसरी बात, जितनी figures of speech आज से पहले हम पढ़ चुके हैं उसका भी रिवीजन करेंगे. Okay? So today's lecture is going to be more important for you because we are going to learn more 7 types of figures of speech and we shall revise all the figures of speech that we have studied earlier lectures. Okay beta, so shall we start to learn figures of speech? Okay, the first figures of speech, as you can see on the screen, that is litotes. Okay, litotes. Some teachers pronounce it, some students pronounce it as litotes or some students pronounce it as litotes. Okay, I pronounce it as litotes. Okay, let us see what is litotes. Okay beta, litotes means double negative. litotes का मीनिंग क्या होता है बेटा? डबल नेगेटिव. उसमें डबल नेगेटिव होता है. You will understand it clearly when you will learn more examples for these litotes. Okay, in litotes, positive expressions are showed by negative expressions. For example, okay, suppose we want to say that ice cream was good. Okay, we want to say that ice creams are good, but instead we say ice cream was not too bad. हम ऐसा सीधी तरह से नहीं बोलते ice cream was good, then there is no figures of speech, but we say ice cream was not bad. Not bad means good. Okay, that means positive expressions are showed by negative expressions. गुड वाली बात नेगेटिव से बताई, नॉट टू बैड. तो इस फिगर्स ऑफ स्पीच को हम बोल सकते हैं लिटोट. क्या बोल सकते हैं बेटा? लिटोट. ओके, अभी दूसरा एग्जांपल, आप जानते हो कि न्यूयॉर्क जो है, ओके, न्यूयॉर्क इज अ फेमस सिटी. तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते कि न्यूयॉर्क इज अ फेमस सिटी, बट हम बोलते हैं न्यूयॉर्क इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी. Okay, New York is not an ordinary city. यहाँ not ordinary, that means extraordinary city. So here positive expressions are showed by negative expressions. समझ में आया बेटा? Yes or no? Okay, so that is litotes. Positive double negative. Positive expressions are showed by negative expressions. Third example बेटा, your comments on politics are not too useless. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? Not to use, not useless. Not useless means your comments are useful. इसका मतलब क्या होता है? Your comments are useful. Okay? So this is litotes. For example, you are not as young as you should to be. You are not as young as you should be. Not young मतलब आप यंग नहीं दिख रहे हो जितने होने चाहिए. मतलब कि यंग हो मगर दिख नहीं रहे हो, तो नॉट यंग हो नेगेटिव लिखा हुआ है. ओके, तो नेगेटिव एक्सप्रेशंस आर शोड हियर बट इट सजेस्ट समथिंग पॉजिटिव. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स लिटोट. ओके, आई कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू. I cannot disagree with your point of view. I cannot disagree. That means I am agree. That means I am agree. Okay? So it is litote. Next, 6th वाला sentence देखिए बेटा. The casserole wasn't too bad. The casserole wasn't too bad. Okay? मतलब वो good था. Not bad, that means. तो वो है litote. नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 वाला, द ट्रिप वॉज नॉट अ टोटल लॉस. ट्रिप वॉज नॉट अ टोटल लॉस. नॉट अ लॉस दैट मीन्स प्रॉफिट था, अच्छी थी ट्रिप. ओके, तो ये लिटोट्स है. 7th वाला एग्जाम्पल देखिए, उसमें लिखा है आई कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट. आई
कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट। ओके, यहाँ पर देखिए, आई कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट। आपके पॉइंट से मैं डिसएग्री नहीं हूं, तो आप एग्री हो ऐसा बोलो। आप बोल रहे हो डिसएग्री नहीं हो, दैट मीन्स एग्री हो। दैट मीन्स पॉजिटिव मैटर इज शोड बाय नेगेटिव वर्ड्स, दैट्स व्हाई दिट इज लिटोड। ओके, नेक्स्ट, Karan is not unlike her father. Okay, that means Karan is like her father. Okay, the game is not likely to be rain out. Not likely to be rain out. Positive बात बताई गई है, नेगेटिव की नेगेटिव यूज करके नॉट यहाँ पर यूज हुआ है, तो वो है लिटोड। समझ में आया बेटा? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। आज जो फिगर्स ऑफ स्पीच बेटा आप पढ़ने वालों वो सारी ऐसी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ओके, इट मे बी इन द एग्जामिनेशन, मगर उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, मगर आज इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़े 5 लेक्चर्स में, वो सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज जो पढ़ेंगे वो शायद आपको थोड़ी अनफेमिलियर लगे, क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं होता है उसकी वजह से, मगर सिलेबस में है, देन आई कैन नॉट स्किप देम, मैं उसे ऑमिट नहीं कर सकता। ओके, तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है बेटा मेटोनिमी। क्या है वो? मेटोनिमी। इन मेटोनिमी, ओके, चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? In metonymy, a word is used for another word. Okay? जो कहना चाहिए वो नहीं कहते, उसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं। Sometimes it is used because it is a well-known characteristic of the word. शायद इसीलिए है क्योंकि ये दुनिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेल नोन फेमस कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल किसी किंग के लिए हम बोले, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किंग के लिए हम ऐसा बोले कि ही इज अ रॉयल पर्सन, रॉयल पर्सन नहीं बोलते, वो बोलते हैं ही इज अ क्राउन, ही इज अ क्राउन। तो क्राउन का मीनिंग तो जो सिर पर पहनते हैं वो क्राउन होता है, मगर क्राउन इज यूज्ड फॉर रॉयल पर्सन, तो ये मेटोनिमी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अमेरिका में आप जानते हो कि व्हाइट हाउस इज अ बिल्डिंग फॉर प्रेसिडेंट, मगर वो इतना फेमस हो गया कि प्रेसिडेंट के लिए भी व्हाइट हाउस कई बार हम यूज करते हैं। द व्हाइट हाउस इज कमिंग टू अवर कंट्री इन द नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स व्हाइट हाउस नहीं आ रहा है अमेरिका से, मगर कौन आ रहा है? प्रेसिडेंट। तो व्हाइट हाउस इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड बेटा? द सूट्स इन द प्लेस ऑफ बिजनेस पीपल। ओके, जो वैसे तो सूट्स होता है हम जो पहनते हैं वो, ओके, मगर कई बार कुछ बिजनेस पर्सन्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन, तो उसके लिए हम बोलते हैं द सूट्स आर कमिंग, द सूट्स आर कमिंग, द सूट्स आर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग एट शार्प 5 o'clock। तो उसका मीनिंग हुआ कि सम बिजनेसमैन आर कमिंग टू अटेंड द मीटिंग। ओके, तो यहाँ पर सूट्स किसके लिए यूज हुआ? बिजनेसमैन के लिए। देन dish for an entire plate of food file. Okay, डिश का मीनिंग हम करते हैं, जो डिश होती है, प्लेट होती है जिसमें हम खाना लेते हैं, मगर कई बार अब ये वर्ड तो आप यूज करते हो डेफिनेटली। आप अगर कहीं जगह खाना खाने के लिए गए और कुछ बहुत ही टेस्टी है तो आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ही अच्छी डिश है। मतलब डिश अच्छी है कि डिश के अंदर जो खाना है वो अच्छा है। ओके, तो जो खाने की चीज होती है उसके लिए भी हम डिश वर्ड यूज करते हैं। देन फिफ्थ एग्जांपल देखिए मेटोनिमी का, द रेस्टोरेंट। ये सारे बहुत ही मोस्ट IMP एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। द रेस्टोरेंट टू रेफर टू द स्टाफ। ओके, स्टाफ के लिए रेस्टोरेंट वर्ड यूज होता है। ओके, द रेस्टोरेंट इज वेटिंग, द रेस्टोरेंट इज वेटिंग देयर, दैट मीन्स staff is waiting there. Okay, the restaurant refers to the staff in English language. So that was metonymy. Understood beta? Metonymy means जो words कहना है वो नहीं कहते, मगर वो वर्ड के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। क्राउन वर्ड किसके लिए यूज होता है? रॉयल पर्सन के लिए।
व्हाइट हाउस किसके लिए यूज होता है? प्रेसिडेंट के लिए। सूट किसके लिए यूज होता है? बिजनेस पीपल के लिए। डिश किसके लिए यूज होता है? प्लेट ऑफ फूड के लिए। रेस्टोरेंट किसके लिए यूज होता है? स्टाफ के लिए। ओके, आई थिंक 5 एग्जांपल्स आर इनफ। ओके, so let's move to our next figures of speech that we have to learn today, and that is paradox. That is paradox. Let me clear the sketches here. Okay, paradox means contradictory. सबसे पहले पैराडॉक्स का मीनिंग देखिए। पैराडॉक्स का मीनिंग होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग वाला। ओके, रिवीलिंग अबाउट अ ह्यूमन नेचर। इससे पहले ऑपोजिट वाली 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं। एक ऑक्सीमोरॉन, उसमें ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं पास पास। दूसरी हम पढ़े थे एंटीथेसिस, उसमें ऑपोजिट आइडियाज होते हैं एंटीथेसिस में। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, मगर ये क्या है इसमें पैराडॉक्स में? रिवीलिंग अबाउट ह्यूमन नेचर। उसमें ह्यूमन नेचर की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहां पर लिखा है आई एम कंपल्सिव लायर। आई एम कंपल्सिव लायर। लायर मतलब झूठ बोलने वाला, और कंपल्सरी झूठ बोलने वाला हूं मैं। ओके, वो उसका मीनिंग है। तो यहां पर ये है पैराडॉक्स। Okay, a rich man is not richer than a poor man. A rich man is not richer than a poor man. Poor man से ज्यादा वो रिच नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन भी है और ह्यूमन नेचर की बात की गई है यहाँ पर, ह्यूमन नेचर की। तो ये जो है वो पैराडॉक्स है। अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? दूसरी बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार वीडियो देखिए 100%। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो है पन। पन को आप पैरोनोमिसिया भी बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम में शायद कई बार लिखा हो। अभी तक तो मैंने एक सा पेपर नहीं देखा, मगर हो सकता है उसका सिमिलर मीनिंग तो आपका होना चाहिए। ओके, फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स यू हैव बीन लर्निंग दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। अब पन क्या होता है बेटा? पन इज अ जॉक। पन क्या होता है? पन इज अ जॉक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए कि पन जो होता है, पन में जॉक्स होता है और उसमें प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलते हैं पन में। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, वो ये बहुत ही आपको फनी लगेंगे एग्जांपल, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लिखा है शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी। अभी फोटोग्राफिक मेमोरी किसे बोलते हैं पता है? फोटोग्राफिक मेमोरी, अगर आपको जो भी आपने बुक में पढ़ा स्वामी विवेकानंद की तरह वो याद रह जाए, कभी नहीं भूलो आप। जो भी मैंने बोला, जो भी साइंस के सर ने पढ़ाया, जो भी मैथ्स के सर ने पढ़ाया, वो आपको नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10 ऑलवेज आपको याद रह जाए, कभी नहीं भूले। तो उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर जॉब क्या है? ओके, फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसके बाद शी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी, सॉरी शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट शी नेवर डेवलप्ड इट। मगर उसने कभी उसे डेवलप नहीं की। दैट मीन्स बहुत बड़ी जॉब है, कभी डेवलप नहीं की, मतलब उसकी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, मतलब उसे कुछ याद नहीं रहता। उस पर ट्रस्ट मत करो, उसकी मेमोरी तो फोटोग्राफी है, मगर उसने कभी उसे डेवलप नहीं, मतलब उसे कहने की बात है उसे कुछ याद नहीं रहता, उसकी कुछ मजाक बनाई गई है यहाँ। और उसके लिए राइटर ने यूज की है फिगर्स ऑफ स्पीच। फन, फन में जॉक होता है, वो ध्यान रखिए। ओके, सेकंड, पियानो आप जानते हो, कितने लोग जानते हैं पियानो बजाना, पियानो या कैसियो? दैट्स वेरी गुड इफ समवन नोज इट। Okay, I am also interested to learn to play these musical instruments, but I have never got a time to learn. Okay, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। The two pianists had a good marriage. 2 पियानिस्ट थे, वो दोनों के मैरिज हुए। They always were in a chord. ये फन वाली बात है। दूसरे, पियानो में कोड होते, तार बड़े बड़े। ओके, उसको बजाते हैं, उसमें से आवाज आती है। तो यहाँ दोनों के लिए बात की गई, दोनों
एक कोड में बंधे थे। ओके, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए उनका जो प्रोफेशन है पियानो, उसी का कोड का यूज किया गया है। दैट्स व्हाई इट लुक लाइक अ फन एंड फन। ओके, अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? ओके, तो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं आज की, और वो है सिनेक डॉट। क्या है बेटा? सिनेक डॉट। याद रखिए, मैंने जो बोला कि आज जो फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ने वाले हो सारी आपको अनफेमिलियर लगेगी, क्योंकि ये बहुत कम यूज होती है, मगर सिलेबस में है। और 10th के बाद तो कंपलसरी याद रखनी है, क्योंकि ये सारी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। ओके, इसीलिए आपको ये बार बार पढ़नी होगी नोट्स, बार बार वीडियो देखना होगा, then you will memorize it, otherwise सिनेक डॉट, मेटोनॉमी सब कुछ भूल जाएंगे आप। ओके, तो सिनेक डॉट में क्या होता है? सिनेक वन वर्ड और पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। सिनेक डॉट में एक वर्ड होता है, एक पार्ट होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, आई हैव 5 mouths to feed at home। 5 mouths to, मेरे घर 5 माउथ है जिनके लिए मुझे कमाना है, उनको खिलाना है। ओके, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता आई हैव 5 persons ऑफ एट होम एंड दे डिपेंड ऑन मी। ओके, मगर यहाँ पर 5 persons के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है बेटा? यहाँ माउथ। ओके, तो ये पर्सन्स के लिए माउथ यूज हुआ है, तो ये सिनेक डॉट। ओके, ही ड्राइव्स द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हील्स इन द सिटी। He drives the most expensive wheel in the city। वो सिटी में सबसे एक्सपेंसिव व्हील ड्राइव करता है। मतलब कोई एक पहिया लेके वो ऐसे 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 नहीं घुमा के फिरता, पहिया लेके, व्हील लेके। व्हील मतलब व्हील इज यूज्ड हियर फॉर, या दैट्स राइट, व्हील इज यूज्ड फॉर कार। उसके पास सबसे एक्सपेंसिव कार है, मगर कार के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर? व्हील। थर्ड, गेट आउट ऑफ माई फेस। मेरे फेस से निकल जाओ, तो मतलब फेस से निकल जाओ मतलब मेरे सामने से निकल जाओ। यहाँ पर जो फेस वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है पर्सन के लिए। ओके, अंडरस्टूड बेटा? यस। यहाँ पर नीचे पर लिखा है, आप देख सकते हो, व्हील हैज बीन यूज्ड फॉर कार, sometimes plastic is used for credit card, coke is used for any cold drink, army is used for soldier। ओके, फिर इसके नीचे है टॉटोलॉजी, वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, 2 वर्ड्स 1 मीनिंग। उसके बाद है अंडरस्टेटमेंट। उसके बाद कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है बेटा? इन अंडरस्टेटमेंट इट इज डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली मेकिंग लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस। किसी बात को, वो सीरियस मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसको कम इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल, एन एटॉमिक ब्लास्ट इज समवॉट नॉइजी। अभी एटॉमिक ब्लास्ट जानते हो आपको, सब दुनिया में सबसे लास्ट एटॉमिक ब्लास्ट कब हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी पर। ओके, कितना भयानक था, कई साल उसकी इफेक्ट रही। ओके, इतना बड़ा था, पूरा एक ही ब्लास्ट में पूरा सिटी खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। ओके, और यहाँ क्या लिखा गया है? एटॉमिक ब्लास्ट इज समवॉट नॉइजी था एटॉमिक ब्लास्ट। ओके, तो यहाँ पर उसे लेस इंपोर्टेंट बनाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है हिटलर। हिटलर वॉज नॉट अ नाइस पर्सन। Hitler was not a nice person. Of course, Hitler was a cruel person. Okay, of Germany. That was one of the important person, and perhaps he was the most important factor of the Second World War. Hitler. मगर हिटलर was not nice person, ऐसा कह के उसे लेस इम्पोर्टेंट बनाया गया है। तो ये जो है वो है अंडरस्टेटमेंट। क्या है बेटा? अंडरस्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, इट वॉज विंडी इन द सिटी ड्यूरिंग हरिकेन। जब हरिकेन आया तो सिटी में थोड़ी थोड़ी विंडी लगती थी। विंडी मतलब जो लहर आती है हवा की,
ओके, थोड़ी थोड़ी हवा की। अभी आप जानते हो, एसएस में पढ़ चुके हो कि हरिकेन क्या है। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। ओके, इंटरनेट में भी सर्च कर लेना कि हरिकेन क्या है। जब हरिकेन, चलो उसका एक वीडियो ही देख लेते हैं। ये हरिकेन का एक वीडियो देखते क्या होता है इसमें। ओके, देखिए अभी ये हरिकेन, तो इसमें क्या, इसे थोड़ी हवा बोल सकते हैं। हरिकेन में पूरा ब्लड उड़ के चला जाता है। तो हरिकेन ओके, तो हरिकेन को यहाँ लेस इम्पोर्टेंट बताया गया है। ओके, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हुई बेटा यहाँ बोलो तो। चलो बस करते हैं वीडियो इतना। ओके, यस, अंडरस्टेटमेंट, उसे क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टेटमेंट। तो ये वीडियो में आपने देखा कि हरिकेन को इतना भयानक है तो भी यहाँ उसे अंडरस्टेटमेंट कर दिया। बिल गेट्स इज अ फाइनेंशियली सिक्योर। बिल गेट्स का नाम, वो दुनिया में शायद फर्स्ट या सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। ओके, तो उसको फाइनेंशियली तो उसकी बात ही नहीं कर सकते, इतने पैसे उनके पास। तो मगर यहाँ पर लिखा गया है बिल गेट्स इज अ फाइनेंशियली सिक्योर, तो उसकी इंपोर्टेंस लेस कर दी गई है। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं बेटा, जिग्मा और सिलेप्सिस। उसको सिलेप्सिस भी बोल सकते हैं। शायद आपने पहली बार सुना हो आज। ओके, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के रिएक्शन जब मैं क्लास में पढ़ा था वो तो ये मिले, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या है। तो इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, 2 words for parts must be understood differently in relation to each। इसमें स्पीच में ये इसका जो सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों को अलग अलग समझनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, he took his head and his leave। ओके, तो यहाँ पर वो ऐसे डायरेक्टली बोल सकता है he took his leave, उसने उसकी परमिशन ले ली और चला गया, he took his leave। मगर यहाँ पर क्या बोला गया है, he took his head and leave, he took his head and leave। उसने अपना सिर लिया और वहां से चला गया। मतलब क्या, सिर हाथ में लेके चला गया। ओके, तो ये है जिग्मा। नेक्स्ट तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिए लास्ट लाइन में, she broke his car and his heart, she broke his car and his heart। उसने उसकी कार को तोड़ दी। तो चलो कार तोड़ दी, बात फिनिश हो गई, मगर उसका हार्ट तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया। कार उसके लिए बहुत फेवरेट थी। ओके, मगर तो यहाँ पर हार्ट लिखा है, तो इसकी पर से हमें पता चलता है कि वो पार्ट हम डिफरेंटली समझे। हार्ट तोड़ दिया मतलब क्या समझेंगे, उसके लिए कार बहुत इंपॉर्टेंट थी, तभी पता चलेगा कि ये दूसरा पार्ट है, उसे अंडरस्टूड, वी शुड अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली, दैट वी कैन से दैट इट्स अ जिग्मा। अंडरस्टूड बेटा। ओके ओके, तो लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारी ट्रांसफर्ड एपिथेट। Okay, transfer epithet is the figures of speech। Okay, transfer epithet is the figures of speech where a modifier qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing। Actually जो वर्ड के साथ एडजेक्टिव यूज हुआ है वो उसके लिए नहीं यूज हुआ है, वो दूसरे नाउन के साथ उसकी मीनिंग ट्रांसफर्ड होती है। In other words, the modifier or epithet is transferred from the noun it is meant to describe another person in a sentence। Example, cruel bars। bars क्या होता है, जो भी कोई प्रिजन होती है, वो प्रिजन में जो बार्स होते हैं जिसके अंदर प्रिजनर बंद होता है, ओके, तो उसे बोलते हैं बार्स। तो बार्स क्रूअल नहीं होते, वो तो लोहे के होते हैं। क्रूअल तो वो ऑफिसर्स हो सकते हैं। ओके, तो क्रूअल ऑफिसर्स कहना चाहते हैं, मगर यहाँ पर क्रूअल एडजेक्टिव यूज हुआ है बार्स के साथ। इट वॉज अ स्लीपलेस नाइट।
इट वॉज अ स्लीपलेस नाइट। ओके, यहाँ पर देखिए स्लीपलेस नाइट लिखा है, तो नाइट तो रात होती है, अंधेरा होती है, उसको स्लीप से साथ कोई लेना देना नहीं। ही वॉज स्लीपलेस या शी वॉज स्लीपलेस, उसे नींद नहीं आई, मगर यहाँ स्लीपलेस एडजेक्टिव नाइट के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुसाइडल स्काई। सुसाइडल मतलब सुसाइड करना, ऐसा वो ऐसा लग रहा था, सुसाइडल स्काई था, वो पर्सन सुसाइडल दिख रहा था, ऐसा लगता था कि वो मरने के लिए जा रहा है, मगर यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्काई के साथ, एडजेक्टिव। ओके, आई हैड अ वंडरफुल डे, मेरा डे वंडरफुल गया। डे वंडरफुल नहीं था, मेरा नेचर, मैं वंडरफुल रहा पूरे दिन, मगर यहाँ वंडरफुल जो एडजेक्टिव है वो डे के साथ यूज हुआ है, तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। Don't confuse transferred epithets will personification or figures of speech in when inanimate object or abstraction is given human qualities or abilities. One of the nature's best example of personification is 19th century poet Carl Sambert's description of a fog. The fog comes on a little cat feet. Okay? यहाँ पर देखिए फॉग आया। ओके, तो आप इसे पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हो क्योंकि फॉग इट्स एन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मगर यहाँ पर देखिए लिटिल कैट फीट, तो जो कैट जो एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज की गई है, तो वो पैर नहीं थे उसके, मतलब फॉग धीरे से आया। कैट एक्चुअली वर्ड इज यूज्ड फॉर फॉग, दैट्स व्हाई हियर ट्रांसफर्ड एपिथेट। Fog doesn't have feet. It is an inanimate object. Fog also can't come or walk. So this quad gives fog qualified it cannot have little feet and ability to walk. The use of personification helps to paint a mental picture in the reader's mind of the fog slowly creeping in. Okay? Okay. By contrast, you could say Sarah has an unhappy marriage. Sarah has an unhappy marriage. तो सारा के मैरिज अनहैप्पी थे। मैरिज तो मैरिज होता है, उसमें क्या हैप्पी या अनहैप्पी, मैरिज। ओके, मैरिज के साथ अनहैप्पी एडजेक्टिव लगाया है, मतलब सारा वॉज अनहैप्पी, मैरिज अनहैप्पी नहीं थे, सारा वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ मैरिज, ऐसा बोल सकते हो, मगर यहाँ लिखा गया है सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज। तो यहाँ पर जो अनहैप्पी एडजेक्टिव है वो ट्रांसफर्ड होता है सारा के साथ। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है बेटा। अ मैरिज इटसेल्फ कैन नॉट बी अनहैप्पी, मैरिज इज एन इनएनिमेट, इट्स जस्ट एन आइडिया, बट सारा could have an unhappy marriage. This word then is transferred epithet. It transferred the modifier unhappy to the word marriage. So that was transferred epithet. इसके साथ total we have completed all figures of speech today. 6th lecture, 6th video lectures में पूरी हुई है। Okay? बहुत ही अच्छी तरह पढ़े हैं, तो भी आपको कुछ डिफिकल्टी है तो वीडियो अगेन देखिए। मैंने बोला था कि लास्ट में हम सारी फिगर्स और स्पीच रिवाइज करेंगे, जिससे आप कितना पढ़े हो वो याद रह जाए। ओके, चलो सारी हम पढ़ते हैं, कितनी याद है अभी आपको पता चलेगा। चलो बोलिए, सिमिली कब यूज होती है? इन सिमिली देयर इज कंपैरिजन, लाइक और एज यूज होते हैं। ओके, दैट्स फाइन। चलो बोलिए, बाद में मेटाफर कब यूज होती है? इन मेटाफर देयर इज कंपैरिजन बट लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। उसके बाद पढ़े थे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स आर टेकन एज अ लिविंग थिंग। ओके, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी में एड्रेस करते हैं। ओके, कुछ एड्रेस होता है। ऑक्सीमोरन, in oxymoron opposite words are taken, opposite words are used, contradictory words। फिर पढ़े थे हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम फैकोलॉजी भी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बोली जाती है, हाइपरबोल। ओके, फिर हम पढ़े थे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। ओके, फिर हम पढ़े थे रिपीटेशन। रिपीटेशन में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, उसको हम एनाफोरा भी बोलते हैं। ओके, टॉटोलॉजी में क्या था? 2 words 1 मीनिंग, एक ही बात है मगर 2 वर्ड्स में बताई गई है। ओके, फिर पढ़े थे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या था?
two ideas, not two words, two ideas are described. That is called antithesis. फिर पढ़े थे हम irony. Irony में होता है satire. जो कहना चाहते हैं, जो लिखी गई है वो बात नहीं है, उसके पीछे और कुछ है, उसे बोलते हैं irony. फिर पढ़े थे एंटी क्लाइमैक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर. नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द टी सेलर. फिर एंटी क्लाइमैक्स के बाद एनाफोरा, रिपीटेशन. फिर एसोनेंस. एसोनेंस में क्या था? एसोनेंस में था रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स इन अ सेंटेंस. ओके, वॉवेल्स. फिर पढ़े थे कीएसमस. कीएसमस में क्या था? सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिवर्स्ड विद फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. ऑनोमेटोपोया, उसमें हम लॉट्स ऑफ साउंड्स पढ़े थे. ओके, लास्ट लेक्चर में. फिर पढ़े थे क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर. नरेंद्र मोदी इज द टी सेलर, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, असेंडिंग ऑर्डर में. फिर हम पढ़े थे एपिग्राम. एपिग्राम में क्या होता है? विटी रिमार्क. ओके. फिर पढ़े थे यूफेमिज्म. यूफेमिज्म में क्या होता है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सेंटेंस को कुछ वर्ड के साथ मोर पोलाइट बनाया जाता है. अभी कुछ स्टूडेंट्स ने, ऐसा हो सकता है वीडियो लेक्चर अटेंड नहीं किया और ऐसा हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आया, तो वो रिलेटेड जो वीडियो है आप दूसरी बार देख लीजिए. ओके. फिर आज जो पढ़े वो रिवाइज कर लेते. आज हम टोटल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े. फर्स्ट वन वाज लिटोट्स. लिटोट्स में क्या होता है? डबल नेगेटिव. लिटोट्स में क्या होता है? डबल नेगेटिव. मेटोनिमी में क्या होता है? वन वर्ड इज यूज्ड फॉर अनदर वर्ड. पैराडॉक्स में क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग अबाउट ह्यूमन नेचर की बात होती है पैराडॉक्स में. ओके. पन में क्या होता है? पन इज अ जॉक. Pun is a joke that plays with words in a sentence. अंडरस्टेटमेंट में deliberately किसी चीज को लेस इम्पोर्टेंट बनाया गया है, उसके हम एग्जाम्पल पढ़े आप. Sigma, two parts must be understood differently. He broke his car and his heart. Okay. ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो एडजेक्टिव जो वर्ड के साथ यूज हुआ है एक्चुअली उसका मीनिंग दूसरे नाउन के साथ ट्रांसफर्ड होता है. दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. So that was all about figures of speech, and I hope that you have understood these figures of speech very well. और मैं ऐसा भी एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आपको रेगुलर क्लास में you would not need to learn it again. Okay? शायद अभी 1 महीना और लॉकडाउन चले, we don't know, 1 महीना चले, 1 दिन चले या okay, we can't say what is going to be happen in coming days. So learn all these topics very well. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Bye.